नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 69નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. 69મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે હે જીવ, આત્માને જન્મ નથી, જરા નથી, મરણ નથી, વ્યાધિ પણ નથી, એને લિંગ નથી, વર્ણ નથી તથા કોઈ પ્રકારની આકાર આદિ સંજ્ઞા પણ નથી અથવા નામ આદિ સંજ્ઞા પણ નથી, એમ તું જાણ. એક સાથે કેટલી બધી વાત કરી દીધી. વેદ જ્ઞાનની વાત છે. આત્માને આમાંનું કાંઈ નથી. જીવે અનાદિથી એ મિથ્યા માન્યતા કરી છે કે કોઈક ને કોઈક વસ્તુ જે એની નથી એને પોતાની માની છે, કોઈક ને કોઈક વસ્તુ જે સ્વરૂપે એ નથી એ સ્વરૂપે પોતાને માન્યો છે, અને કોઈક ને કોઈક વસ્તુ જે એને ઈષ્ટ પણ નથી, અનિષ્ટ પણ નથી, એને ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ માની લીધી છે. અને અનાદિનું આમ થઈ રહ્યું છે. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આત્મા એ બધાથી જુદો છે. આત્માને એમાંનું કાંઈ નથી. જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ નથી, લિંગ નથી, વર્ણ નથી. આ બધી વાત જે છે તે શરીર સાથે સંકળાયેલી વાત છે. એને આત્મા સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી વિપરીત એવા વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ, એમાં તો શાંતિ અને આનંદની અનુભૂતિ હોય છે, પણ એનાથી વિપરીત એવા કસાયો છે જે જીવને કશે છે, જીવને દુઃખ આપનારા છે. એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એ વિભાવ ભાવોથી જે કર્મ ઉપાર્જન કરાયેલા છે, એટલે કે એવા પૂર્વે કસાય ભાવે થયો, એવા વિકારી ભાવે થયો, વિભાવ ભાવે થયો, એટલે એને ભાવાશ્રવ અને ભાવ બંધ થયા, અને એનું નિમિત્ત પામીને પેલા દ્રવ્ય કર્મ બંધાયા. તો એવા કર્મ, એવા જે કર્મ બંધાયા છે, તો એ કર્મ ઉપાર્જન કરેલા છે. અને એના જયારે ઉદય આવે છે, તો એવા ઉદયથી એની સાથે જોડાઈ અને ફરી પાછો એ વિકારી ભાવે થાય છે. કે છે કે તેના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિકારો શુદ્ધ નિશ્ચયથી જીવના નથી. એમાંનું કાંઈ પણ જીવનું નથી. પૂર્વે જે વિભાવ ભાવ કર્યા, કસાય ભાવે થયો, એ પણ જીવના નહીં. ભાવ બંધ થયા, એ પણ જીવના નહીં. અને એને કારણે જે દ્રવ્ય બંધ થયો, એ પણ જીવનો નહીં. અને એ દ્રવ્યબંધ ઉદયમાં આવ્યો અને એનું લક્ષ કરતા ફરી વિકાર થાય છે, એ પણ જીવનો નથી. નિશ્ચય નહીંથી એ કોઈ જીવના નથી. કારણ કે આત્મા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે. માટે સર્વ પ્રકારના કર્મ વિલાસથી તે જુદો જ છે. શુદ્ધ સહજ આત્મદ્રવ્યથી ભિન્ન સર્વ પદાર્થો હે રૂપ છે. બીજા બધા પદાર્થો છોડવા યોગ્ય છે, એમ જાણો. આ ગાથા, એનો અન્વયાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે, એનો થોડો ભાગ કર્યો છે. આજે આગળ લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ બીજો, એના પાના નંબર 227 ઉપર અહીંયા છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. तो यहाँ कहते हैं जब लग अपनी चीज को जानी नहीं न राग आदि को अपना मानकर रहा, तब लग पर्याय में बाल अवस्था है. और अपना आत्मा पूर्णानंद का नाथ है उसकी दृष्टि करके अनुभव किया, अंतरात्मा हुआ, तो आत्मा की जुआन अवस्था हुई. पर्याय में युवान अवस्था हुई है.
और ये आत्मा में केवल ज्ञान होता है ત્યારે पर्याय में वृद्धावस्था हुई है। समझ में आया? भगवान तेरी चीज ऐसी है। ये भगवान स्वरूप ही है। भगना है? आत्मा बुढ़ा होता है। बूढ़ा बूढ़ा कहा होता है किया नहीं। केवल ज्ञान होता है तो अवस्था में बुढ़ा होता है, वस्तु में तो है ये। पर्याय में हो, शरीर में तो नहीं। शरीर का बुढ़ापा ही तो आत्मा में है क्या? तो माटी जड़ है, जगत की चीज माटी है। तो ये माटी अपने से रहिए, अपने से प्रणमती है, अपने से छुट जाएगी। एक ही आत्मा की चीज नहीं हो तो जड़ है, माटी है, धूल है। ऐसे लक्ष्मी भी धूल माटी है। ये माटी अपनी है, देह अपनी है। ऐसी जब लग मान्यता मिथ्यात है, तब लग बहिरात्मा है, तब लग बाल अवस्था पर्याय में है। ये आई कहते हैं भगवान आत्मा में जरा नहीं रहा, शरीर की जरा नहीं, पर केवल ज्ञान की वृद्धावस्था पर्याय है, वो भी आत्मा में नहीं। पर्याय में है। तो कल आया नहीं। आत्मा है वो तो पर्याय में आता ही नहीं। केवल ज्ञान भी पर्याय है, कोई गुण नहीं। गुण तो त्रिकाल है, ध्रुव। एक समय की केवल दशा परमात्मा दशा, ये भी पर्याय है, अवस्था है। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु को केवल ज्ञान की पर्याय में भी आता नहीं। एक समय की पर्याय में आ जाए तो नाश हो जाए उसका, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय दूसरे समय तो नाश होती है, एक समय रहती है। केवल ज्ञान भी एक समय रहता है, पर्याय है, नाशवान है। दूसरे समय दूसरी पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है। जो केवल ज्ञान की पर्याय में सामान आ जाए, विशेष पर्याय में सामान आ जाए तो विशेष पलटते सामान का भी नाश हो जाए। अरे भाई 43 चीज क्या है? नवमी ग्रेक अनंत वेर गई, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो। पण आत्मज्ञान में लेश आत्मज्ञान हो, आत्मा की पर्याय का ज्ञान के ऐसा ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा जो त्रिकाल जो कहते हैं, ध्रुव, ऐसा आत्मा का ज्ञान बिना लेश सुख न पाया। पंच महावरत 28 मूलगुण और शरीर को छेद करे तो भी क्रोध न करे, ऐसी पण वो सब राग की क्रिया है। स्वभाव से विपरीत राग उसकी क्रिया है, ये तो दुख की क्रिया है। समझ में आया? पंच महाव्रत का भाव दुख रूप है, आश्रव है, राग है। तो भगवान आत्मा ऐसी क्रिया कांड तो अनंत भैर किया, हम आत्मज्ञान में किया। भगवान एक समय में पूर्णानंद प्रभु चिद रूपो हम, ज्ञान रूप जो मेरा स्वरूप त्रिकाल है,
इसका ज्ञान न किया, अज्ञान बिना आनंद न आया। समझ में आया? तो वही कहते हैं कि पर्याय में भी आता नहीं, आई तो बुढ़ापा नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होता है तो उसमें आत्मा नहीं आता। देह का जन्म होता है उसमें तो आत्मा नहीं आता। आओ मार्ग चलो, रोते तारी मोटप तेरे खबर नहीं। कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं, शरीर की अवस्था नहीं, और केवल ज्ञान की भाव बुढ़ापा, वो भी द्रव्य में नहीं। समझ में आया? पुस्तक है भाई जमुनादास जी, परमात्मा प्रकाश जमुनादास છે પરમાત્મા જલગામ સાહેબ ભાઈ રામીભાઈ જલગામ થયો છે ભાઈ તમારા રાજકોટના મોતી हम जलगाम गए नहीं, जलगाम तो उसकी दुकान में थे, मोती है राजकोट का, बड़ी दुकान है, तो उसको रुदन आ गया, बहुत रुदन भाई आए, मोती है राजकोट। हमको देखकर हमको तो खबर नहीं कुछ, स्वागत तो थे होते थे ना मानस थे, उसको दुकान में बैठे थे, देखकर रुदन आ गया, बहुत रुदन। पीछे तो काल लेकर आया जो हमारा उतारा थे, क्या हुआ हमको, कैसे नहीं हमसे आपको क्या सुकन दिया विपरीत प्रेम ना आंसू आगे है या महाराज से मोती है। 101 रुपया लेकर आया, भेज कर ऐसी कोई चीज अंदर से अब देख कर ऐसा हो गया उसका। भगवान आत्मा। वो आठवीं रकम नहीं आते, आंसू आ गए सब, आठवीं रकम, आठवीं रकम रखना आंसू कहते। क्या कहते हैं कि आत्मा का जब भान होता है, क्या हरक का आंसू आता है, क्या आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ आया देवीलाल जी? आठवीं का समय अंदर में आनंद, बाहर में आंसू, पर्याय में आनंद आया। जब कोई चीज को देखकर हरक का आंसू आता है ना, वाला पुत्र हो के साथ देख करके, हो भाई तेरा बहुत वर्ष है, परदेश में थे, अभी आई, ऐसे भगवान बहुत काल से राग की आड़ में थे, राग का प्रेम छोड़कर अंदर जाएंगे, आनंद का आंसू आया। प्रभु को देखकर हरख आता है न, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ इंद्रो आई नाम, જેના જન્મમાં
ઇન્દ્ર 1000 આંખ કરીને દેખે બહારનું રૂપો, भगवान का शरीर का सुंदरता नमनाई बाहर की देखकर एक आंखें तृप्त नहीं होती, 1000 आंख करते हैं છતાંય તૃપ્તિ નથી. તો બીજું કેવું છે ને, અંતરનો આનંદનો નાથ યા ચૈતન મૂર્તિ ભગવાન. राग ने पर्याय बुद्धि में जो दूर था, राग की एकता ने पर्याय बुद्धि में भगवान दूर था, अपना भगवान हो. ये पर्याय को उसकी सन्मुख किया, आनंद की धारा बहती है. उसका नाम आत्मज्ञान या सम्यक दर्शन हुआ कहते हैं. हाँ तो बापू धर्म ની વાત है भाई. धर्म चीज ऐसी कोई होती है लोग के मान रखिए, ऐसी धर्म चीज नहीं है. समझ में आया? उसमें तो ऐसा आया ना भाई, स्वस्ति. एक कोई ब्राह्मण कहियो कि स्वस्ति 8वीं का समय था तुम्हारा स्वस्ति, समझे नहीं तो टक टक देते हैं. क्या कहते हैं आप? स्वस्ति स्वस्ति क्या कहते हैं? हम तो कुछ समझते नहीं. टक 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 मेढा जैसे देखे ऐसे टक टक देखते हैं सर. क्या कहते हैं आप? उसने कहा तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये हम कहते हैं हम. सुअस्ति स्वस्ति स्वस्ति, स्वनाम तेरा आत्मा का अस्थि नाम जैसा है ऐसा कल्याण हो. तो उसका हर का आंसू आता है. ऐसा है 8वीं से. ऐसे भगवान संत वो उसको कहे कि तुम आत्मा ऐसा है, आत्मा के यहाँ तुम तब तक दिख रहे. क्या कहते हैं प्रभु आप, क्या कहते हैं? क्या तो कहते हैं तैया भैया तेरे आत्मा उसको कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो. ये आत्मा हम वेद से व्यवहार से कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है आत्मा. तो वो दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने वाला आत्मा क्या नजर गई? हाँ, आनंद धारा. हाँ, यानी उसका नाम धर्म है. अरे बात है भाई. हाँ हाँ, तेरी प्रभुता की तेरी खबर नहीं. तुम पामर में अपना मान लिया है. ये अपनी पर्याय में केवल ज्ञान हो तो इतना भी आत्मा नहीं. समझ में आया? वो तो पूर्णानंद का नाम ध्रुव स्वरूप चिदानंद आनंद की गांठड़ी है, ज्ञान का गुलाम है, स्वभाव का सागर है, अनंत शक्ति का संग्रहालय स्थान है. संग्रहालय कहते हैं आलय. हाँ, और समझाई से नहीं भाई ऋषभ भाई, आप तो सादी भाषा थे. अरे प्रभु, परमात्मा प्रकाश है. આપણે પરમાત્મા પ્રકાશ નામ છે ને, હુકમચંદ પુત્ર છે ને, वो हुकमचंद जी पंडित है ना, जयपुर वाला हुकमचंद जी पंडित है. बहुत पंडित अभी उसकी सूक्ष्म बहुत हो और रुचि भी बहुत अच्छा है.
और उसका भाषण करते हैं। अभी आएगा, कल आएगा, कल आएगा, थोड़ा धीरे गिर। उसका लड़का बड़ा है, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है, और छोटा लड़का है, उसका नाम अध्यात्म प्रकाश है, और आगे लड़का है अनंत प्रकाश है। वो लड़का बहुत रस है। हमारे फूलचंद जी का लड़का है, झांझरी के। इतनी उम्र में सो रात्रि को आर पानी छूट दिया है, 1.5 वर्ष से। वो लड़का है ना छोटा, रात्रि को आर पानी नहीं, और आठम 14 का उपवास, एक टाना करते वांछन करते रोज। आत्मा है तो क्या 8 वर्ष से केवल ज्ञान पाते, उसमें है क्या? उम्र की क्या जरूरत है? हम सर का सन्मुख होना, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? हम तो पढ़े नहीं है, दूसरे क्लास भी तो नहीं पढ़े, हम कैसे जान पाए? क्या हम तो पढ़े ही नहीं है ना। पढ़े नहीं क्यों? आप शास्त्र तो पढ़े है ना, आत्मा पूजा नहीं। आत्मा पढ़ा इसको कहते हैं कि स्वानुभूति से आत्मा का पकड़ हो जाए, तब आत्मा का प्रजा, आत्मा का बंतर हुआ उसका। शास्त्र तो अमृत में पढ़ा, 11 का ज्ञान 9 पूर्व की लब्धि हुई, अभवी को अलगी होती, उसमें क्या है? परलक्षी ज्ञान है, वो कोई स्वरूप नहीं। 9 पूर्व का ज्ञान वो कोई चीज नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप पूर्णानंद का गांठड़ी है, तो उसकी एकता से गांठड़ी खोल दिया। वो राग की एकता में गांठ की बंद था, सारा पटारा बंद था, और राग की एकता छोड़कर स्वभाव की एकता किया, निदान खोल दिया। आत्मा ऐसा है, समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान। અત્યારે તો બહારમાં ऐसा करना क्या है नहीं, ज्ञान की बात करी, ये तो निश्चय की बात नहीं, पर निश्चय नाम सत्य। सत्यार्थ को निश्चय कहते हैं, उपचार को व्यवहार कहते हैं। आता नहीं मोक्ष मार्ग में। यहाँ कहते हैं बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर का रोग तो नहीं उसमें, पर आत्म भ्रांति समय रोग नहीं, भ्रांति हुई बड़ा रोग है। आत्मा आनंद स्वरूप को छोड़कर राग मेरा है, ऐसी भ्रांति बड़ा रोग है। समझ में आया? ये रोग भी आत्मा में नहीं। समझ में आया? रोग नहीं, लिंग नहीं। शरीर का जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का न जड़ का, वो उसमें है नहीं, वो तो नहीं। पर स्त्री वेद की वासना, पुरुष वेद की वासना, नपुंसक वेद की वासना, वो स्वरूप में नहीं। ये तो अवेदी स्वरूप है, वेद का स्वरूप से रहित है। ऐसा भगवान आत्मा वो सन्मुख होकर दृष्टि करना, उसका नाम धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन है।
धर्म की शुरुआत। आ बिना व्रत ने तप ने लेने बैठे हैं सब। बाल व्रत ने बाल तप है, मूर्खाई भरेला व्रत, मूर्खाई भरेला तप है। बंद अधिकार ने कहा, समझ में आया? हाँ, लिंग नहीं, वर्ण नहीं, रंग अंदर आत्मा में रंग नहीं, अने वर्ण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण आत्मा में नहीं। समझ में आया? वर्ण नाम रंग भी नहीं और वर्ण नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण भी आत्मा में नहीं है। आराधी एक भी संज्ञा और नाम नहीं। आहार संज्ञा आदि तो नहीं, पर आर संज्ञा का नाम उसमें नहीं। आहार संज्ञा, द्वय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चार संज्ञा, ये भगवान आत्मा में नहीं, ये तो चिदानंद शुद्ध है। समझ में आया? और इस संज्ञा का नाम भी उसमें नहीं, वस्तु तो नहीं पर नाम भी उसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा तुम निश्चय कर जान है। भगवान तू निश्चय कर, ऐसा तेरे को जान। आई बात से प्रभु। मूल वस्तु आ છે। મૂળ વસ્તુની દૃષ્ટિ વિના જે કંઈ કરે એ सब संसार का, अने राग से आत्मा को प्राप्ति हो व्यवहार से, तो ना पड़ते उसमें है नहीं राग, तो उसमें है नहीं, उससे क्यों प्राप्त हो? समझ में आया? अलिंगरण में आया है, छठा बोले अलिंगरण 20 बोले समय प्रवचनसार 172 गाथा 20 अलिंगरण, छठा बोले। आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता है, ऐसा पृथक ज्ञाता है। आ शब्द है छठा बोल। भगवान आत्मा और राग ने व्यवहार से जाने में नहीं आता है, हम कहते हैं। भगवान आत्मा 6 बोले, छठा बोल 20 बोल में अपना स्वभाव से जानने में आता है। ये आनंद नहीं, ज्ञान का स्वभाव से जानने में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है ना वो। वो चीज प्रत्यक्ष पड़ी है कहते हैं, अने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है वो आत्मा। समझ में आया? अलिंगरण है ना, 20 बोल, छठा बोले है। इंद्री से जानने में आता नहीं भगवान, इंद्री से जानते नहीं प्रभु, इंद्री से जानते नहीं आत्मा। इंद्री का प्रत्यक्ष विषय नहीं प्रभु। अन्न द्वारा अनुमान से जनाए ऐसा नहीं, अने आत्मा अपना अनुमान से जाने पर को ऐसा नहीं। भगवान आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता है और ये प्रत्यक्ष ज्ञाता है। सारी बात से भाई मानस ने એવું લાગે કે આપે ભાઈ હજી આ તો નિશ્ચય નહીં એકડાની વાત है।
सम्यक दर्शन एकड़ा उसकी बात है। चरित्र तो क्या है, ये तो पीछे है। स्वरूप दृष्टि में आया पूर्णानंद का नाथ, वो दृष्टि में आया, पीछे उसमें ठहरना, रमना, जमना, आनंद का भोजन करना, उसका नाम चारित्र है। આવી વાત છે પ્રભુ। શરીરની જવાન અવસ્થા, 5 ઇન્દ્રિય મજબૂત હોય, નિરોગ શરીર હોય, 5-25 लाख पैसा हो, कुटुंब स्त्री अनुकूल हो, ये सब तो मकान की चीज है। तो तेरे में क्या है वो? हाँ, वो तो कहते हैं तेरे में है, वो बाई में नहीं, बाई में है, तेरे में नहीं। भावार्थ, वितराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम उनकर उपराधन किए। एम के છે કે જન્મ નથી પણ જન્મ થયો કેમ ત્યારે શરીરનો આદ્યો કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ समाधि से विपरीत भगवान आत्मा પોતાની વિતરાગ निर्विकल्प अभेद शांति, ये इसकी प्राप्ति करने में वो कारण है। उसका विपरीत वितराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम विकारी भाव उन पर उपराजित किए कर्म, एनाथी उपरांजन हुआ कर्म। शुद्धात्मानुभूति, वितराग अनुभूति से तो आत्मा प्राप्त हो, उसमें कोई कर्म होता? शुद्धात्मानुभूति से कर्म नहीं होता। उससे तो कर्म की निर्जा होती है। तो शुद्धात्मानुभूति से विपरीत विभाव भाव से उत्पन्न हुआ जो कर्म, समझ में आया? एना उदय से उत्पन्न हुई जन्म मरण, ये बांझा कर्म, उससे वहां जन्म मरण होता है। भगवान आत्मा में तो है ही नहीं। उस शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत भाव में बंधन हुआ, उसके जन्म मरण होता है। समझ में आया? अध्यात्म की बात सूक्ष्म है भगवान, ये कभी उसने सुनी नहीं। चौथी गाथा में कहा है, शुद्ध परिचित अनुभूता। भगवान ते राग की बात सांभरी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और राग से बिन भगवान की बातें सुनी नहीं। और परिचय में आई नहीं, अनुभव किया नहीं। तो ये एक ही दुर्लभ है। समझ में आया? विषय कषाय का परिणाम लक्ष्मी की प्राप्ति ये कोई दुर्लभ नहीं, ये तो अनादि हुआ है। अज्ञानियों को विषय कषाय का परिणाम सुलभ है, ज्ञानियों को विषय कषाय का परिणाम दुर्लभ है। अमृतमय આવી વાત છે ભગવાન। લોકો ગમે તે કહો, इसकी जवाबदारी उसके पास है।
मार्ग तो है, ये मार्ग आया बिना कभी जन्म मरण का उद्धार नहीं होता। बराबर। हाँ, अभी 2-3 दिन पे अमास, एक लड़का, रबारी का लड़का था, भरवाड़ का, 15 वर्ष का, और माह महीने में लगन हुआ था, माह मास में लगन हुआ, 15 मास, वो कुत्ता पागल कर लिया तो हड़काया हो गया, पागल हो गया। अमास 4 दिन हुआ ना, अमास ने दे चुट गया, कुटुंब बांधो बने, बांधो खाटला साथ बांधो, बांधे कहते हैं मारा काम थी जाए से बटका भरવાનું पागल कुत्ता हड़काया कहते हैं हमारे, तो उसको नहीं 2-3 को है जबरो હતો નામ અમારા ચીમનભાઈ ને રહેતો એમ ગયા ચીમનભાઈ નથી આવ્યા अच्छा ચાલતો છે રામજીભાઈ એવું કે આપણે પૂનોભાઈ છે ને આપણો નોકરભાઈ એનો જમાઈ મને બાંધો ખાટલે ઊંધે નાખીને ઊંધો કરો, मेरे से बटका भर जाइए, बांधो, सब कुटुंब इकट्ठा हुआ, रोए क्या करे, पीड़ा बहुत उसको, पागल कुत्ता पीड़ा बहुत उठी, पवन पानी कुछ ऐसी पीड़ा देह की ने राग की एकता बुद्धि से पीड़ा है, शरीर के काम से नहीं। हाँ, समझ में आया? एक है पीड़ाया અહીંયા હમણાં 4 दिन हुआ। છોકરો 15 वर्ष का जवान, माह महीना में लगन, ये लोग परवाड़े ने छोटी उम्र में लगन कर देते थे। जाओ બધા जन्म मरण शुद्धात्मानुभूति का अभाव से, विवाह भाव से उत्पन्न हुआ कर्म, उससे जन्म मरण रोग होता है। समझ में आया? अनेक विकार है, वे शुद्ध निश्चय नहीं पर जीव के नहीं। जो विकार से कर्म को बंधन कर्म से रोग आदि है, ये विकार जीव का नहीं। जिसको भगवान आत्मा जीव कहिए, निश्चय आत्मा परमात्मा स्वरूप, उसको यह जीव कहते हैं, पर्याय को नहीं। ऐसे भगवान आत्मा में वो विकार है नहीं। है शोध निश्चय नहीं कर, जीव के नहीं है। क्यों निश्चय नहीं कर? आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों कर पूर्ण है। केवल ज्ञान એટલે पर्यायની बात नहीं, केवल ज्ञान, एकिला ज्ञान, केवल ज्ञान पर्याय ये नहीं। अब एकला ज्ञान, एकला आनंद, एकेला केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान, एकेला आनंद, एकेली शांति, एकेली स्वस्थता, एकेली प्रभुता, ऐसा अनंत गुणों कर पूर्ण है प्रभु को। લોકોને આ દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે અને દ્રષ્ટિનો વિષય क्या है ऐसी खबर नहीं, અને ધર્મ કરતે ठीक भाई जीवन ચાલ્યું જશે પ્રભુ। મનુષ્યપણું મળ્યું છે, ભાવના અનંત ભાવના અભાવ માટેનો ભાવ છે। અનંત ભાવના અભાવ માટેનો અભાવ है। ये अनंत भावना अभाव न किया
ये बहुबा ऐसा ऐसा अनंत है, क्या किया उसने। हाँ हाँ, बाहर में आबरू मिली 5-50 लाख, अबज रुपया किया नहीं, 2 અબજ 40 કરોડ। અહીંયા આપણે करोड़पति बैठे हैं बहुत, ये में क्या हुआ उसमें। शोध निश्चय नहीं कर, ठिकाड़ी भगवान आत्मा, आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों पर पूर्ण है। जोयूं अल्पज्ञ अवस्था ही नहीं, गुण से परिपूर्ण प्रभु। आहा, अनंत गुण का निधान भगवान आत्मा तो अनंत शांति, अनंत ज्ञान, केवल नाम एकનું જ્ઞાન, એકેલા આનંદ, જેમાં ભેદ નહીં, પર્યાય નહીં। આહા, જેમાં અપૂર્ણતા નહીં, જેમાં વિપરીતતા નહીં, જેમાં અલ્પતા નહીં। ऐसा भगवान आत्मा है। कोई भी गुण सुना ही नहीं उसने। धूड़ ने धानिया अनंत केवल अनादि अनंत गुणों कर पूर्ण है और अनादि संतान से प्राप्त। जन्म मरण तो अनादि से पर्याय में है। अनादि संतान, अनादि प्रवाह, प्राप्त जन्म, जरा, वृद्धावस्था, मरण, दे छूटना, ये तो संतान चला जाता है। भगवान तो अनंत गुण का पिंड है, उसमें तो कुछ है नहीं। समझ में आया। जन्म, जरा, रोग, शोक, भय, ये कुछ आत्मा में है नहीं, त्रिकाली वस्तु में है नहीं। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, लिंग, वेद वेद वासना लिंग બધું उसमें है नहीं। सफेद, काला वगैरह वर्ण, दौड़ो वर्ण, रूपाओं वर्ण, ये तो जड़ का है। आत्मा में क्या है भाई। हाँ, महान राख रूपाળી હોય એવું આપ છે, રૂપાળું બધું કે છે। मसान मसान, हाँ, राजाओं को बालते हैं ना, तो सूखड़ का चंदन को बालते हैं। रानी आ गई, 2 मन, 3 मन, 4 मन, 5 मन, एक ही चंदन, एकला चंदन। तो उसकी राख भी कहती होती, कैसी होती। एक फिर जामनगर माता थी, कोई रानी गुजरी थी, मसाण में बहु बाजा, अमुक अमुक दी दूध नाखता, गायू गायू जई मसाण में राख ऊपर दूध। दूधी पहुंचતું નથી। અહીં બેઠો હોય ના, અહીં મોઢામાં પડે, આને પડતું નથી, ન્યા ક્યાંથી પડતું। એ બધા મૂર્ખાઈના લખન છે। આ એકને મોઢામાં નાખીને દૂસરા પડતા है। ધૂળ મોકલતા નહીં, ભ્રમણા है અમને। यहाँ तो कहते हैं कि स्वेद आदि वर्ण आत्मा में नहीं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा 4 भावों से भिन्न है। इन सबों से भिन्न भगवान है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ उपादेय अनंत सुख का धाम। હવે આદરણીય કોણ है? આ તો त्याग है सबका। अनंत सुख का धाम। हाँ हाँ हाँ, अतीन्द्रिय आनंद का धाम भगवान है। हाँ हाँ, समझ में आया।
अतीन्द्रिय सुख का धाम जो शुद्ध जीव उससे बिन जन्मादिक है, ये सब त्याग है। एक आत्मा उपाधि है। अनंत सुख का धाम भगवान, ये अनंत गुण एक रूप, वो आत्मा आदरणीय है, आदर करने लायक है, सत्कार करने लायक है, स्वीकार करने लायक है, प्रतिकारी आत्मा है कि जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है विशेष के। આ રીતે 69મી ગાથાનો વિસ્તાર થયો. સુખધામ